Acid, bases and salts, part 2. We have done some chemical properties and we also did this, that you should always add acid to water and not add water to acid to be on the safe side. And this is called dilution reaction, and diluting an acid with water is exothermic. It releases heat. There is an activity in textbook. Sulfuric acid H2SO4 plus salt NaCl becomes HCl and Na2SO4. This hydrochloric acid is a dry gas and you cannot do a litmus test. Litmus test सिर्फ liquids का कर सकते, because acids are acids in presence of water only. ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसलिए डिजाइन किया है to prove one fact that HCl का पाउडर is not acidic. HCl gas is not acidic. It is only HCl in liquid form where it can behave like an acid. Why is that? The reason is, definition of acid says you have to release H plus ions, hydronium ions or H3O plus ions, and to release these ions you have to have a liquid medium. इसलिए ये एक्सपेरिमेंट देखो, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaCl, ये रहा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं. The reaction will happen. When reaction happens, hydrochloric gas is released. और ये गैस से लिटमस टेस्ट कर रहा है आदमी, लेकिन अभी तो बोला कि लिटमस टेस्ट नहीं होगा. The HCl gas which is coming out, which will not turn the litmus paper blue to red, but see carefully, this is a moist litmus paper. Science is, the beauty of science is in details. नॉर्मल लिटमस टेस्ट करोगे, पेपर को गैस के पास रखोगे तो कुछ नहीं होगा, बट मॉइस्ट लिटमस पेपर मीन्स इट हैज वाटर, एंड दैट वाटर when it comes in contact with HCl gas, then it becomes HCl acid, because it is able to release the H plus ion, and hence blue litmus paper becomes red. इतना समझना है इस detailed discussion से. So wherever you see this diagram, remember it's to prove that acids and bases behave as acids and base only in liquids. Wet the litmus paper and then try HCl gas. This time the litmus test happens because of the presence of water. Conclusion: acids need water to behave like acids, and bases also need water to behave like bases. Acid bases दोनों liquids होते हैं, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, but then they are not behaving like acids and base. Some reactions to understand that how HCl is an acid. Hydrochloric acid, when it comes in contact with water, अबे HCl का L गायब हो गया. Hydrochloric acid, when it comes in contact with water, the H plus is given to water and it becomes H3O plus and Cl minus. So what happened? H3O plus ion was released, and it is because of this ion that HCl behaves
like an acid. So H plus donated by HCl combined with water to form a hydronium ion. How does NaOH behave like a base? When NaOH is put in water, it splits into Na plus and OH minus. बस टुकड़े हो जाते हैं. Therefore, OH is released, and whenever OH is released, that particular thing is a base. KOH in water, it does not react with water. It splits into two parts in water. MgOH twice, magnesium hydroxide in water becomes Mg2 plus ion, and 2 hydroxide ions is released. And this is the standard formula. पानी किससे बनता है? H plus और OH minus से. You remember what is neutralization reaction? Neutralization reaction is acid plus base is salt plus water. Acids release H plus, base release OH minus, and when acids and base mix, H and OH mix to form water. Acid का pH is less than 7. Base का pH is more than 7, but when they combine, H plus और OH minus खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके पानी बन जाता है, and therefore the pH becomes 7, which is called neutral. So 7 is neutral. 7 से ज़्यादा 14 तक base, 7 से कम 0 तक acid. Anyways, so this is a list of basic equations. ये कुछ 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. This is not something which you have to buy hard. This is something which you understand, that acids release H plus, bases release OH minus. इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स नोट्स में है, एक बार पढ़ो, देखो उसमें क्या है. लेट अस डिस्कस स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base, weak acid and weak base. Do you find any difference in these two statements? More acidic, less acidic, more basic, less basic. Compare it to the statement weak and strong acid and weak and strong base. More acidic, strong, less acidic, weak. But नहीं, ऐसा नहीं है. Carefully see, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा समझने की कोशिश करो. First we'll discuss the red color, more acidic and less acidic. More acidic and less acidic is decided by the pH. More acidic and less acidic is decided by pH. 0 means very acidic. 7 means neutral. 14 means very basic. जितने ज़्यादा H plus ions होंगे उतना कम pH और उतना ज़्यादा acidic. Higher the hydronium ions, which is H plus ions. तो जितने ज़्यादा H plus ions होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, इसलिए इट विल बी मोर एसिडिक. बट आई एम अवॉइडिंग द वर्ड स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग इज डिफरेंट. More acidic, less acidic, pH. More H plus ion, more acidic, less pH. और इसका उल्टा more hydroxide ion. जितने ज़्यादा OH minus ions होंगे उतना हाई pH होगा, और जितना हाई pH उतना हाई basic. So pH is related to
more acidic, less acidic, more basic, less basic, and it is related to the concentration of H plus OH minus. Imagine these test tubes. This has 2 H plus ions, this has 5 H plus ions, this has 10 H plus ions, this has 3 OH minus ions, and this has 10 OH minus ions. So, who is more acidic? H plus, H plus, H plus, they are acids. This is more acidic. This is less. This is least acidic because less H plus ions. तो इसका pH सबसे कम होगा. हाँ, उल्टा होता है. इसका pH will be in the middle, and least H plus ions means high pH. The pH number will be high. OH is released by base. Who is more basic? 10 OH is more basic. 3 OH is less basic. And 10 OH minus का pH ज़्यादा होगा. OH कम है तो pH कम होगा. Try to remember this relation between pH and concentration of H plus and OH minus to decide who is more acidic and who is less acidic. पूरे डिस्कशन में 5 मिनट से मैंने वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज किया. Why? What is weak and strong? Let us see now. The blue team. Sorry. If HCl, HNO3 or H2SO4 are taken, they dissociate into H plus ions 100% fully, then they are strong acids. मैंने एक टेस्ट ट्यूब में 5 मॉलिक्यूल HCl लिए, 5 मॉलिक्यूल HNO3 लिए, 5 मॉलिक्यूल H2SO4 लिया है. When they are put in water, they become acids. In water, the 5HCl will give 5H plus and 5Cl minus. It will split fully. 5HNO3 will give 5H plus and 5NO3 minus, and 5H2SO4 will give 10H plus. क्यों? क्योंकि H2 है, H2 ऐसे 5 and 5SO4 2 minus. जितने भी मॉलिक्यूल है 100% all the molecules split and create H plus are called strong acids. It has nothing to do with how much H plus is produced. It has nothing to do with pH. Just a simple फंडा. क्या सारे मॉलिक्यूल्स छूटे हो गए? हाँ, स्ट्रॉन्ग है. तो 5HCl की जगह मैं 35HCl लूँ तो it will split 35-35. That's an indication of strong. What is weak? Weak is टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड. ये सारे एसिड्स के नाम पढ़ो. टार्टरिक इमली में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होता है, और एसिटिक एसिड विनेगर होता है चाइनीज फूड में. सो ऑल दीज आर वीक एसिड्स. व्हाई? बिकॉज व्हेन आई टेक अ टेस्ट ट्यूब और एसिटिक एसिड का पाउडर आता है, इफ आई पुट दैट पाउडर and 5 molecules of acetic acid are put, hardly 1 H plus will be produced. The rest of the 4 molecules will remain as it is.
splitting is not 100%. Not all the 5 molecules will split, and that's an indication that it is a weak acid. Acetic acid versus sulfuric acid, नहीं nitric acid, HNO3, 20 molecules of nitric acid, 20 molecules of acetic acid, CH3COOH. When put in a test tube full of water, it will split into 20H plus and 20 NO3 minus. But when these 20 molecules of acetic acid are put in water, it will split hardly into 2H plus and 2 CH2COO minus, CH3CO minus. ये उसके टुकड़े होंगे ना, एक और दूसरा, तो बाकी के 18 मॉलिक्यूल्स को कुछ नहीं होगा. इट विल रिमेन एज एसिटिक एसिड. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस why these acids are called strong, because they fully dissociate. Dissociate मतलब टूटना. And these acids, they do not fully dissociate, therefore they are called weak. दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. Strong acids are available in chemistry lab. Weak acids are available in your fridge and kitchen. Strong acids are called inorganic acids. Weak acids are called organic acids. Inorganic acids are found in chemistry lab and they are poisonous. But weak acids are found in your fridge and kitchen and they are food. जैसे मैंने कहा टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है और इमली हम खाते हैं. ये वीक है इसीलिए हम खाते हैं. तुम्हारा स्टमक, इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है फॉर डाइजेशन. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, नो अदर एक्सटर्नल इनऑर्गेनिक एसिड कैन द स्टमक टेक, because there are too many H plus ions and H plus ion harm the body. तो फिर हम क्यों विनेगर खाते हैं, टार्ट्रिक एसिड, इमली, टमाटर, नींबू खाते हैं? Because small amount is required, but too much is bad for health. बेस में एग्जाम्पल पढ़ लो. सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, they fully dissociate into OH ions, therefore they are strong base. But ammonium hydroxide, NH4OH, very important objective question, they don't dissociate fully, therefore they are weak base. और weak base खा नहीं सकते, base खाते ही नहीं है generally. Acids हम खाते हैं, which is नींबू, टमाटर, etc. So remember, weak and strong base का examples. So this was the 15-minute discussion on the topic more acidic, less acidic versus weak and strong. More acidic, less acidic is decided by pH. Weak and strong is decided by how much dissociation happens. Full or partial, दो ही ऑप्शन है. pH scale, ये तो मैं बातों बातों में 2-4 बार बता चुका हूं. That 7 is called neutral. 7 से 0 की तरफ का जोन इज एसिडिक. 7 से 14 तक का जोन इज बेसिक. 0 to 7 pH है, मतलब H plus ions are more, OH minus ions are less. But 7 to 14 pH में concentration of OH minus ions increases and H plus ion reduces. ये कुछ नहीं है. हाउ टू टेस्ट पीएच. पीएच टेस्ट करने के लिए ऐसे एक पेपर आता है, जैसे लिटमस टेस्ट है. रेड टू ब्लू बेसिक, ब्लू टू रेड एसिडिक. वैसे पीएच पेपर मिलता है, इतना सा स्ट्रिप होता है टूथपिक जितना, एंड यू टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड डिप, इट विल चेंज कलर.
एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट कलर यू कैन मैच इट विद द बॉटल, और बॉटल के ऊपर ही स्टिकर लगाया होगा। तो अगर तुमने अपना यूरिन लिया है एंड यू पुट दिस पेपर, and if you find out that the paper has got red color, urine भले yellow है, but the indicator paper is showing red, it means your urine is heavily acidic, which is not a good thing. If your paper is blue, then also it's not a good thing, it is heavily basic. यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है वो तुम गूगल करना, बट आई एम श्योर इट इज नॉट 0 और 14. So if that result comes, doctor can advise you that there is some problem in your body and you have to get it further tested or take medicines. This is handy information. What is the pH of day to day stuff? पेट के अंदर का जूस is quite concentrated, pH 1.2. Lemon juice 2.2, water 7.4, blood and water same. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल का नाम है 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अबाउट 14. दिस इज हाउ पीएच पेपर टेल्स यू पीएच ऑफ डिफरेंट थिंग. नाउ स्टार्ट्स माय फेवरेट टॉपिक. व्हाई फेवरेट? बिकॉज इट्स वेरी इजी, गुड फॉर यू ऑल्सो. 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? सारे पैराग्राफ लिख देने. पैराग्राफ नंबर 1, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? प्लांट्स और एनिमल्स को पीएच से फर्क पड़ता है कि नहीं? पड़ता है. आवर बॉडीज वर्क बेस्ट इफ द ब्लड पीएच इज बिटवीन 7 to 7.8. अगर पीएच इसके बाहर गया ब्लड का तो बॉडी विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स. पीएच ऑफ रेन वाटर इज अराउंड 5.6, then it is called acid rain. And you know acid rain happens because of our pollution and all that activity. Now this acid rain goes into the rivers and it makes the river low in pH, which means it makes the river acidic. An acidic river is not good for survival of aquatic life. Fish and other living organisms face problem. So are plants and animals pH sensitive? Yes. और 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखना. पीएच ऑफ ब्लड लिविंग ऑर्गेनिज्म का और 5.6 इज द पीएच ऑफ वाटर विच इज बैड. एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक white yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? No. But my answer is yes. Can this life of earth exist there? No. But वहाँ की अपनी अलग लाइफ बन सकती. Theoretically it is possible. हमको क्या मालूम, शायद अभी भी वहाँ पे लाइफ हो जो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकती. एनीवेज, सेकेंड पैराग्राफ, वी आर डूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. What is the pH of soil in your backyard? तुम्हारे घर के पीछे का सॉइल का pH क्या है वो चेक करो. सॉइल का pH भी 7 के आसपास होना चाहिए. If you find out that the pH is 3, it's called acidic soil. And some plants like acidic soil, some plants hate acidic soil. But if your pH is around 9, it is called basic soil. Some plants like basic soil, some do not like basic soil. And market में there are chemicals available which you can go and buy to put it in the soil so that you can control the pH. pH in our digestive system, HCl, stomach, which I already mentioned. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. हम खुद बनाते हैं HCl, but पी नहीं सकते because it's inorganic acid. It helps in digestion of food without harming the stomach. During ingestion, the stomach produces too much acid. कभी कभी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है
तो पेट दुखता है और इरिटेशन होती, एंड दिस इरिटेशन इज कॉल्ड एसिडिटी. सो एसिडिटी होने का मतलब है पेट में ज्यादा एसिड है, और एसिड का दुश्मन होता है बेस. एसिड को मारना है तो बेस दवाई बना के ले लो. What is the basic medicine which we take when acidity happens? It's called magnesium hydroxide, common name milk of magnesia. और उसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये. That's third paragraph. So we did pH in animals and plants, pH in soil, pH in digestive system. Now we'll do pH in tooth decay. दांत सड़ते हैं, काले हो जाते हैं. क्यों सड़ते हैं और क्यों काले हो जाते हैं? लेट्स डिस्कस, देन आई रीड, देन आई एक्सप्लेन. टूथ डीके, डीके मतलब सड़ जाना, starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारे मुंह में एसिड भर के मत रखो. कोको कोला इज एसिडिक. when you're drinking coke, pepsi, sprite, thumbs up, limca, whatever, don't fill your mouth with it, because you're destroying the outer layer of your teeth, because what you're drinking is acidic. even नींबू पानी पी रहे हो तो उसको बस पी जाओ. मुंह में भर के रखोगे तो यू आर लोअरिंग द पीएच. और अगर पीएच 5.5 से कम है किसी चीज का जो टच कर रहा है, तो तुम्हारे दांत का टॉप लेयर, जिसको कहते हैं इनेमल, जो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ, और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. दिस केमिकल is called enamel, and that gets destroyed in low pH. Therefore don't drink acidic material. चाय, कॉफी, कोक सब एसिडिक होता है. पियो मतलब कम पियो, और पीने के बाद गार्गल और माउथ विद वाटर, ताकि पीएच 7 हो जाए. ये कैल्शियम कोरोड हो जाता है. अनदर थिंग, चलो तुम नहीं पी रहे हो, तुम कोक को हाथ नहीं लगाते, तुम चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, नो एसिडिक, नो नींबू पानी, नथिंग, फिर भी तुम्हारे दांत सारे सड़ गए. क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब तुम खाना खाते थे तो तुम्हारे दांत के बीच में वो खाना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फंस जाता था, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, और तुम ब्रश नहीं करते थे. अब ये खाना, तुम्हारा तो पेट नहीं भरेगा, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल समवेयर इनसाइड, बट दिस इज अ बिग जमणवार फॉर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया विल स्टार्ट ईटिंग दिस फूड. और बैक्टीरिया जब खाना खाता है तो इट ईट्स द शुगर्स इन द फूड एंड कन्वर्ट्स दो शुगर टू एसिड, और एसिड की छींची फीपी कर देते. तो खाने का शुगर, शरीर के बाहर फेंकने का एसिड, एंड दिस एसिड अगेन डिस्ट्रॉयज द इनेमल लेयर. तो इनडायरेक्टली एसिड तो आ गया, और वो कॉन्सेंट्रेटेड है उस पॉइंट पे, देयरफॉर इट स्टार्ट्स सड़ोइंग, एंड देयरफॉर यू शुड ब्रश योर माउथ एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. यू शुड नॉट कीप एसिडिक थिंग्स इन योर माउथ. तो ये रहा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स बाय कन्वर्टिंग शुगर. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Use toothpaste, which are generally basic. Toothpaste हमेशा बेसिक होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है सब कुछ. That's about tooth decay. दांतों की सड़न, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. वॉर, फाइटिंग के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, विच आर एसिड्स. Have you ever been stung by a honey bee? Bee sting has an acid. और जब बी काटती है तो वो एसिड अंदर जाता है. जब वो एसिड अंदर जाता है तो भयानक पेन, सूज जाता है, लाल हो जाता है, खुजली होती है. इट इज वेरी इरिटेटिंग. हाउ डू यू फाइट दिस हनी बी स्टिंग? विथ अ बेस लाइक बेकिंग सोडा.
उस पे बेकिंग सोडा लगा देने का. कीड़ी करड़ी जाए, कोई जीवड़ू करड़ी जाए અને લાલ લાલ ખજવાળ આવે તો એના ઉપર વ્હાઇટ કલર की कोलगेट टूथपेस्ट या फिर बेकिंग सोडा लगा दो. देर इज दिस प्लांट कॉल्ड नेटल. और नेटल के जो लीव्स होते हैं, अगर वो लीव्स को टच कर लिया भूल से, पैर के आसपास या हाथ पे टच हो गया, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक कांटे होते हैं जे स्टिंग बैडली, करड़े, और इतने खराब करेंगे कि तुम पूरे शरीर में खुजली होगी. बिकॉज द स्टिंग कंटेन्स मिथेनॉइक एसिड and it causes burning pain in your body. So nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair which causes painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with leaf of dock plant. नेटल प्लांट अगर एसिडिक है तो नेचर ने डॉक प्लांट बनाया है विच ग्रोज नेक्स्ट टू नेटल लीव्स. डॉक प्लांट का लेप लगाओगे तो तुमको अच्छा लगेगा बिकॉज इट इज बेसिक एंड नेटल लीव्स आर एसिडिक. विनेगर, ऑरेंज, इमली मतलब टैमरिंड, टोमेटो, कर्ड, दही, लेमन, एंड स्टिंग एंड नेटल स्टिंग, all these come from living things. They are plants and animals, and therefore they are all organic acids, and organic acids are always weak. विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड. बाय हार्ट ऑब्जेक्टिव्स. Salts. This is a list of salts which you have to write the formula. Potassium sulfate K2SO4, sodium sulfate Na2SO4, calcium sulfate CaSO4. क्यों ऐसा? Ca2SO4 नहीं. 9th स्टैंडर्ड में सीखा था पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है तो पोटेशियम की वैलेंसी सल्फेट की वैलेंसी को क्रॉस करो, K2SO4 1, K2SO4. सोडियम सल्फेट मीन्स Na and SO4, Na की वैलेंसी +1, SO4 -2, Na2SO4 1 मतलब Na2SO4. बट कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ +2 एंड सल्फेट इज -2. जब दोनों सेम होते हैं तो CaSO4, MgSO4, CuSO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3. क्यों Na2CO3? बिकॉज सोडियम एंड कार्बोनेट में सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की -2. प्रेसी नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है. सो Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. सो रिमेंबर द नेम्स ऑफ सॉल्ट्स, इट्स इंपॉर्टेंट. पीएच ऑफ सॉल्ट्स. जनरली एसिड का पीएच होता है 7 से कम, बेस का पीएच होता है 7 से ज़्यादा, एंड व्हेन एसिड एंड बेस मिक्स इट गिव्स अ सॉल्ट वाला वाटर, एंड सॉल्ट वाटर इज जनरली न्यूट्रल. पढ़ते हैं. सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच 7. strong acid, strong base. salt का pH 7. but strong acid, weak base. तो एसिड स्ट्रॉन्ग है
तो सॉल्ट का पीएच 7 से कम। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस ताकतवर है तो पीएच 7 के ऊपर चला जाएगा, और दोनों ही वीक है तो भगवान भरोसे पीएच कैन बी 7, लेस देन 7 और मोर देन 7। ये याद रखना। देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, मोर देन 7। स्ट्रॉन्ग बेस, weak acid, more than 7. So this table which I have drawn, if you remember, you know all the combinations easily. छपा हुआ है तुम्हारे लिए, मैंने प्रेजेंटेशन शायद भेजा है, नहीं भेजा है तो ये वाला प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, क्या 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 होगा, बाय हार्ट इट। Chemicals from common salt. By now you have learned that salt formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide is called sodium chloride. This is the salt that you use in food. You must have observed it is neutral. Seawater contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world, and these large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. कोल जैसे निकालते जमीन में वैसे rock salt निकालते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च was also done for salt. All pointless paragraph, कुछ मतलब नहीं है। यहां से एक नया चीज शुरू होता है। I want you to take your notebook and keep writing down what I'm telling you. This is the first topic A. कॉमन सॉल्ट की कुंडली बनाएंगे। लिखो A, कॉमन सॉल्ट। Common salt thus obtained is important raw material for various materials in daily life such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, many mold. Let's see. कॉमन सॉल्ट से बहुत कुछ बनता है, वो A नहीं, ये A है, सॉरी। The first thing made from common salt is sodium hydroxide, NaOH. How is it made? तो लिखो नंबर 1, preparation dash. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process because of the products formed. Chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. क्या किया? लिखो NaCl plus water is equal to brine plus electricity is equal to NaOH plus Cl2 plus H2. Here are reaction: salt, water, NaOH, Cl2, H2. And to balance the chemical equation like we learnt in chapter 1, 2 salt, 2 water, 2 NaOH, 1 Cl2 और 1 H2. And this entire process is called chlor-alkali process. इंडस्ट्री में यूज होता है ये chlor-alkali process, which gives us chlorine gas and sodium hydroxide base. तो नमक का पहला उपयोग NaOH बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो इट इज ऑलवेज पास थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। सो दिस इज द सेटअप ऑफ अ फैक्ट्री। ये एक बिल्डिंग जितनी बड़ी फैक्ट्री है जिसके बीचों बीच कंटेनर है विच कंटेन्स ब्राइन। ब्राइन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। 2 hanging rods are connected to electricity. Plus is anode, minus is cathode. अब पावर ऑन करो। The minute power starts, all the chlorine in the salt के अंदर 2 चीज है, Na और Cl। तो जहां जहां Cl है वो सारा Cl
स्टार्ट्स टू ट्रैवल हियर, और फिर ये इसके साथ चिपक के इलेक्ट्रिसिटी यूज करके Cl2 गैस बन जाता है। और सॉल्ट के अंदर दूसरी चीज थी Na। सारा सोडियम starts to travel towards cathode and goes towards the cathode and reacts with water। वाटर कहाँ से है? सॉल्ट वाटर है ना, पानी भी है। अब पानी HOH में ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ टूट फूट गया है, सारे NaCl टूट गए, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गए। अब क्लोरीन ने क्या किया? सारे टूटे फूटे क्लोरीन ने जोड़ी बनाई, Cl2 Cl2 Cl2, और उड़ गए। कहां से? यहां से। सारे टूटे फूटे H प्लस ने अपनी जोड़ी बना ली, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, और कहाँ गया? ये देखो, H2 हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और अब बचा Na और OH। तो Na और OH ने अपनी जोड़ी बना ली, NaOH NaOH NaOH। So only electricity has this power to break everything and rejoin everything to create new stuff, and this entire process is called chlor-alkali process। ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विथ फिगर यू हैव टू राइट इट डाउन। प्लस what are the uses of chlorine gas? Chlorine gas फेक नहीं देते। Chlorine gas is used in water treatment plants, swimming pools, PVC, disinfectant, CFC and pesticide। What is the use of hydrogen gas? The hydrogen gas फेंकने के लिए नहीं है, it is fuel for making margarine, ammonia for fertilizers। और जो NaOH बना, liquid NaOH, उसका उपयोग डिग्रीसिंग मेटल्स, मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। तो 3 चीज बनती है सिर्फ एक चीज में से, नमक। नॉर्मल सॉल्ट गिव्स अस 3 थिंग्स एंड रन्स मेनी इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ए खत्म, बी हमने NaOH बना लिया, अब बी फॉर ब्लीचिंग पाउडर बनाते। कैसे? क्लोरीन ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर रिएक्ट करवाते। ड्राई स्लेक्ड लाइम मतलब CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, reacts with the chlorine to form CaOCl2 and water। By heart this reaction, this is called ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बस हो गया। हाउ टू मेक ब्लीचिंग पाउडर? COH twice plus Cl2 COCl2 H2। यूजेस ये भी बाय हार्ट कर लो, इजी है। कॉटन, लिनेन, टेक्सटाइल्स એટલે કપડું, wood pulp for paper factory and washed clothes for laundry। in short, कपड़े को सफेद करना है तो ब्लीच चाहिए। ब्लीच इज अ वाइटनिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल, वॉशिंग क्लोथ्स, चादर, पेपर, सब कुछ। सेकेंड यूज, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड यूज, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म फ्री करना है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। सी, ए बी सी और सॉल्ट में से क्या बना सकते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किचन में यूज होता है फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग।
द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम और केमिकल फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाउ टू मेक इट? प्रेपरेशन: टेक सॉल्ट, add water, add carbon dioxide, add ammonia। NaCl पाउडर होता है, वाटर लिक्विड, CO2 गैस एंड अमोनिया गैस, और फैक्ट्री में ये सब मिक्स करते हैं, तब बनता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज बेसिक, इट्स अ बेस, याद रखना। इट इज अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। सी इट्स रिटन हियर, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। बेस नहीं है, बेसिक सॉल्ट है, माई मिस्टेक। इट्स नॉट अ बेस, इट्स अ सॉल्ट, बट इट्स अ बेसिक सॉल्ट। pH इज मोर देन 7। ये क्या है? Baking soda when heated becomes sodium carbonate, water and CO2। एक पैन में केक मिक्स बना है। केक मिक्स मतलब बैटर ऑफ अ केक। तो चॉकलेट केक है, तो ब्राउन कलर का बैटर डाल दिया और इसमें डाला था बेकिंग सोडा NaHCO3। फिर इसको डाल दिया अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट विल द हीट डू? उसका केमिकल रिएक्शन है, ये तुम्हारी केक और बिस्किट के अंदर होता है। द हीट विल ब्रेक NaHCO3 एंड फॉर्म Na2CO3, जो हम खा सकते हैं, पहली बात, प्लस सम वाटर जिससे मॉइस्ट बनता है केक, एंड CO2 जिससे केक फ्लफी बनता है। वच्चे होल्स थे जाए केक में, वो क्यों होते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो वी यूज बेकिंग सोडा फॉर बेनिफिट ऑफ आवर सेल्स। Uses of baking soda: for making baking powder, which is a mixture of baking soda and mild edible acids such as tartaric acid. So baking soda and baking powder are different. Baking soda is pure chemical called sodium hydrogen carbonate. But when sodium hydrogen carbonate is mixed with tartaric acid, it is called baking powder. And this baking powder is used in baking. उसका रिएक्शन है NaHCO3 और टार्ट्रिक एसिड का एसिड में से H प्लस आएगा, will create CO2, water and sodium salt of acid, and all this is necessary for your cakes and biscuits. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है? कार्बन डाइऑक्साइड causes the bread to rise and makes them soft and spongy, जैसे मैंने पहले बताया। सेकेंड यूज ऑफ बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट। सेकेंड यूज ऑफ बेकिंग सोडा, एंटासिड्स में गोड़ी आवे, एंटी एसिड, एसिडिटी के अगेंस्ट दवाइयों में डालते हैं, बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड ऑफ स्टमक, एंड इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर ना बाटलाમાં નાખેલું હોય because it can extinguish fire. D, washing soda. A B C D, लिखो washing soda. Another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda का फॉर्मूला देखो, Na2CO3 10H2O। उसके स्ट्रक्चर के अंदर पानी फिट हुआ है, और Na2CO3 का केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. मतलब NaCl में से बनाओ Na2CO3,
NaCl में से बनेगा NaHCO3। ये रहा प्रेपरेशन। बेकिंग सोडा NaCl में से NaHCO3, NaHCO3 को गरम करो। केमिस्ट्री में छोटा ट्राइंगल मतलब हीट, वो भी रिएक्शन पीछे था। ये रहा NaHCO3 is heated, gives Na2CO3। और ये Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज करो तो बन जाएगा Na2CO3 with 10H2O inside it। Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। This is recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। Remember this reaction है क्या? Na2CO3 plus 10H2O is Na2CO3 10H2O। What does 10H2O tell you? It simply tells कि the structure of sodium carbonate is such कि उसमें जगह है और वो जगह पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बैठ सकते हैं और बैठना ज़रूरी है, तो ही वॉशिंग पाउडर काम करेगा। यूजेस, हर एक के यूजेस है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। इट्स यूज्ड इन मेकिंग बोरैक्स विच इज अ सोडियम कंपाउंड, केमिकल का नाम है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, साबु आबू धोआ करवा, बाथरूम क्लीनर एक्सेट्रा, एंड यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। बाय हार्ट दिस यूजेस में क्या है? आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? ये देखो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स। खड़ी साकर, इट्स अ क्रिस्टल ऑफ शुगर। रॉक सॉल्ट, इट्स अ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। आर दी सॉल्ट ड्राई? द आंसर इज नॉट नेसेसरी। सॉल्ट पत्थर जैसा होता है जिसके अंदर पानी हो नहीं सकता, हम तोड़ेंगे तो पाउडर हो जाएगा बट पानी नहीं निकलेगा, बट दे आर नॉट रियली ड्राई। वाटर इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, copper sulfate crystals which looks dry but they contain water inside it। जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो वो अपना कलर बदलता है। क्यों? What is the color of copper sulfate crystal? मस्त ब्लू कलर होता है। एंड दिस नाइस ब्यूटिफुल ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डज नॉट रिमेन ब्लू व्हेन इट इज हीटेड। ट्राई करें, हीटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, देखो व्हाइट कलर आ गया। द रीजन इज हीट रिमूव्स द वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, देयरफॉर crystals have water। विदाउट वाटर इट इज व्हाइट, विथ वाटर इट इज ब्लू। और कितने वाटर होते हैं? तो ये रहा CuSO4 5H2O। तो कॉपर सल्फेट हैज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट। एंड सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा में 10H2O होता है, वो भी याद है। कॉपर सल्फेट में 5H2O एंड कैल्शियम सल्फेट में 2H2O। So remember this, that crystals are not really dry, they contain water inside their structure। वो वाटर से वेट हो जाते हैं बट लगते नहीं। ABCD किधर पहुंचे हम? वी आर डूइंग
कॉमन सॉल्ट से बनने वाली सब चीज़ें. कॉमन सॉल्ट नंबर 1 NaOH, नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर, नंबर 3 बेकिंग सोडा, नंबर 4 वॉशिंग सोडा, नंबर 5 क्रिस्टल एक टॉपिक है, वो कुछ बनता नहीं है, तो नंबर 5 ABCDE प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये भी नहीं, वो 4 ही है. दिस इज रिलेटेड टू क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स. तो क्रिस्टल का है. प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुंडली है, याद रख लो. ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes what? Gypsum at 373 Kelvin Kelvin temperature loses water to become calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 half H2O. Hemihydrate मतलब आधा molecule water. And this आधा molecule water वाला version is called plaster of Paris. POP पता है सबको, सबके घर में होगा, यूज किया होगा. इट्स अ वेरी कॉमन मटेरियल. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O. और ये बनता किस में से है? POP, जिप्सम में से. और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O. तो दोनों CaSO4 ही है, बट जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल वाटर है. उसको परफेक्ट मस्त तरीके से गरम वरम करो तो वो हाफ H2O हो जाएगा, बाकी का पानी उड़ जाएगा, तो वो POP बन जाएगा. POP. So this is how the world works. Imagine this. This is अहमदाबाद सिटी और ये है 50 किलोमीटर दूर एक माइन और बीच में है फैक्ट्री. माइन के अंदर से मिलता है जिप्सम, मतलब नेचुरली क्रिएटेड कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O. इसको हम बेचते हैं फैक्ट्री, जिसमें से गरम करके 1.5 H2O को उड़ा देते हैं और वो बन जाता है CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम बैग में पैक करते हैं, पैक को सील करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ब्रांड नेम लगा के शहर भेज देते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस अहमदाबाद पहुंचता है, अहमदाबाद से मेरे घर पहुंचता है और सबसे पहला काम मेरा पेंटर क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिक्स करता है, तो ही वो यूज हो सकता है. और POP के साथ पानी का मतलब है बैक टू वेयर इट वाज. POP CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, it will become gypsum again. और ये जिप्सम इज टफ, हार्ड, सॉलिड. तो नेचर से निकला, प्रोसेस किया, पाउडर बनाया, पाउडर बेच दिया. पाउडर मैं खरीद के लाया और पाउडर में पानी मिला के जिप्सम बन गया, बट द जिप्सम इज स्टिल वेट. ऑल आई हैव टू डू इज अप्लाई ऑन माई वॉल्स, और एक बार सूख गया तो इट बिकम्स रॉक सॉलिड वंस अगेन. दिस इज हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड. This is the hidden chemistry. The formula is calcium sulfate hemihydrate, आधा water. बस चैप्टर ओवर. स्टार्ट प्रिपेयरिंग द चैप्टर फ्रॉम नोट्स. नोट्स के क्वेश्चन आंसर में कुछ ना समझ में आए तो पूछना. थैंक यू.